Hello students, today we are going to start with our first topic for NTSC revision number system. ठीक है, नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी क्लासेस 9th और 10th में पढ़ गए हैं. ठीक है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा, HCF एंड LCM एंड सो ऑन. ठीक है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे NTSC बेस्ड हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज question number 1. 1 by 64 raised to the power 0 plus 64 raised to the power minus 1 by 2 minus of 32 raised to the power 4 by 5 is equal to. Options are minus 15 7 by 8, minus 14 7 by 8, 16 1 by 8 and 17 1 by 8. Okay. Okay, so 1 by 64 raised to the power 0 plus 64 raised to the power minus 1 by 2 minus of minus 32 raised to the power 4 by 5. A raised to the power 0 is 1. A raised to the power 0 is equals to 1. So 61 by 64 raised to the power 0 is 1. So this is 1 plus 64. 64 is square of 8. Raised to the power minus 1 by 2 minus 32 is 2 raised to the power 5 whole power 4 by 5. Now 2 cancel, 5 cancel, 1 plus 8 raised to the power minus 1 minus of 2 raised to the power 4. A raised to the power minus 1 is equals to 1 upon A. So 1 plus 1 by 8 minus 2 raised to the power 4. 2 raised to the power 4 is 16. But minus 2 raised to the power 4 is also plus 16. So it's plus 16. Taking LCM, 8 LCM, 8 plus 1 minus 16 times 8 is 128. 128 plus 8 minus 128 minus 120 minus 120 plus 1 minus 119 by 8. ठीक है, लेकिन हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं है. हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है. ठीक है, तो अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर लेते हैं. माइनस 8 टाइम्स 1 8, 8 times 1 is 8. 11 minus 8 is 3, 39. 8 times 4 32. ठीक है, अब कितने हो गए थे? 32, 39. ओके, तो 39 minus 32 is 7. 14 minus 14, remainder is 7 by 8. So the correct option is option 3 minus 14 7 by 8. Clear? Next question.
Next is question number 2. The value of x when 2 raised to the power x plus 4 into 3 raised to the power x plus 1 is equals to 288 is 1, -1, 0 or none of these. Two raised to the power x plus 4 into 3 raised to the power x plus 1 is equals to 288. Now, prime factors of 288. Two times 144 is 288. 2 times 72 is 144. 2 times 36, 72, 18. 3 times 3, 9. And 3 times 1 is 3. So 2 times 5 into 3 raised to the power 2. 2 raised to the power x plus 4 into 3 raised to the power x plus 1 is equals to 288 को क्या लिख सकते हैं हम 2 raised to the power 5 into square of 3. ठीक है, अब यहां पर हमें कंपैरिजन करना है LHS और RHS यहां पे हमें कंपेयर करना है 2 raised to the power x plus 4 2 raised to the power 5 क्लियर है इस टर्म को हम कंपेयर कर सकते हैं इससे 2 raised to the power x plus 4 is equals to 2 raised to the power 5. टू रेज टू द पावर 5 बेस सेम है पावर्स क्या होंगी इक्वल सो x प्लस 4 is equals to 5. X is equals to 5 minus 4. X is equals to 1. Answer. So x is equals to 1. लेकिन हमारे पास एक नंबर और है अभी 3 raised to the power x plus 1 और 3 raised to the power 2. तो हम इनको भी कंपेयर कर सकते हैं 3 raised to the power x plus 1 and 3 raised to the power 3 raised to the power 2. इनको भी अगर हम कंपेयर कर लें देन 3 raised to the power x plus 1 is equals to 3 raised to the power 2. बेस सेम है पावर्स इक्वल हो जाएंगी सो x plus 1 is equals to 2. X is equals to 2 minus 1. X is equals to 1. तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू सॉल्व कर लें आंसर हमारे लिए सेम ही आ रहा है x का x is equals to 1. So correct answer is option 1 that x is equals to 1. Next is next question number 3. Value of 1 upon 1 plus root 2 plus 1 upon root 2 plus root 3 plus 1 upon root 3 plus root 4 and so on up to 1 upon root 8 plus root 8 9. Options are 2, 3, 4 and 5. क्लियर तो यहां पर हमें बेसिक कंसेप्ट क्या यूज करना है रैशनलाइजेशन ठीक है यहां हमें इसको रैशनलाइज ही करना है सो वन अपॉन 1 plus root 2 plus 1 upon
√2 plus √3 1 upon √3 plus √4 plus 1 upon √4 plus √5 plus 1 upon √5 plus √6 plus 1 upon √6 plus √7 plus 1 upon √7 plus √8 plus 1 upon √8 plus √9। इन सारे टर्म्स को हम रैशनलाइज कर देते हैं, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। यहां हमें क्या गिवन है, √4 √8, ठीक है। इनको हमें कन्वर्ट नहीं करना है 2 और 2 √2 में, ठीक है। इनको हमें ऐसे ही रैशनलाइज करना है, लास्ट में आके ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 upon 1 plus √2, rationalize by, multiply and divide by 1 minus √2 plus 1 upon √2 plus √3। multiply and divide by √2 minus √3 divided by √2 minus √3 plus 1 upon √3 plus √4 multiply and divide by √3 minus √4 divided by √3 minus √4 plus 1 upon √4 plus √5 ठीक है। ये तो हमारी कुछ टर्म्स हो गई जो हमें रैशनलाइज करनी है, ठीक है। हमने कहा तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म, ठीक है, √4 plus √5 ये हमने रैशनलाइज कर लिया है, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो है 1 upon √5 √5 plus √6 multiply and divide by √5 minus √6 divided by √5 minus √6 plus next term 1 upon √6 plus √7 multiply and divide by √6 minus √7 divided by √6 minus √7 plus 1 upon √7 plus √8 multiply and divide by √7 minus √8 divided by √7 minus √8 plus 1 upon
√8 plus √9 multiply and divide by √8 minus √9 divided by √8 minus √9. इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा आंसर? न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, ठीक है. अब डिनोमिनेटर में हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? 1 प्लस √2 एंड 1 माइनस √2, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So square of 1 is 1 and square of √2 is 2. So 1 minus 2 is minus 1 plus. Similarly, second term, √2 minus √3 divided by √2 plus √3, √2 minus √3, a plus b, a minus b, a square minus b square. So 2 minus 3 is minus 1 plus √3 minus √4 divided by 1 plus √4 minus √5 divided by minus 1 plus √5 minus √6 divided by minus 1 plus √6 minus √7 divided by minus 1 plus √7 minus √8 divided by minus 1 plus √8 minus √9 divided by minus 1. सब जगह डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ रहा है, तो न्यूमरेटर में हमारी जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? -1 प्लस √2 ठीक है, -1 प्लस √2, ये टर्म्स चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी? √2 माइनस √3 है, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी -√2 प्लस √3, -√2 प्लस √3 -√3 प्लस √4 -√4 प्लस √5 -√5 प्लस √6 -√6 प्लस √7 -√7 प्लस √8 -√8 प्लस √9. ठीक है, ये आ गई टर्म्स हमारे पास. अब कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस √2 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √3 √4 माइनस √4 √5 माइनस √6 √6 माइनस √6 √7 √8, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई. रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास? -1 प्लस √9, -1 प्लस √9 इज 3 प्लस माइनस माइनस 3 minus 1 is 2. So option is option 1. Answer 2 is correct. क्लियर है? तो जितनी भी हमें टर्म्स गिवन हैं इन सबको हमें अलग अलग रैशनलाइज करना है. ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा इसमें? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Value of x satisfying under root x plus 3 plus under root x minus 2 equals to 5 is. ठीक है, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? लेट
अंडर रूट x plus 3 is equals to a and अंडर रूट x minus 2 is equals to b. इनको a और b सपोज कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, अंडर रूट x plus 3 plus अंडर रूट x minus 2 is equals to 5. Let x plus 3 equals to a and x minus 2 equals to b. ठीक है, अंडर रूट वाली टर्म नहीं लेनी है, सिर्फ x plus 3 को a सपोज करना है, x minus 2 को हमें b सपोज करना है। इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इज इक्वल्स टू 5. अंडर रूट a इज इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट b. ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो रूट a स्क्वायर is equals to 5 minus root b square. Square of root a is a and 5 minus root b, a minus b whole square, a square minus 2ab and b square plus under root b square. So a is equals to square of 5, 25 minus 10 root b plus b. ठीक है, यहां तक तो हम आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहां पर a और b जो हमने सपोज किए थे x plus 3 एंड x minus 2, ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो a is equals to x plus 3, x plus 3 is equals to 25 minus 10 under root x minus 2 plus x minus 2. x plus 3 minus 25 minus x plus 2 is equals to minus 10 अंडर रूट x minus 2. ठीक है, टर्म अभी अंडर रूट में ही है, प्लस x माइनस x कैंसिल, 3 plus 2 is 5, 25 minus 5 is minus 20 equals to minus 10 अंडर रूट x minus 2. माइनस साइन कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 is equals to अंडर रूट x minus 2. ठीक है, अभी भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम और क्या कर सकते हैं, वापस से स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. So square of 2 is equals to under root x minus 2 whole square. 4 is equals to x minus 2. X is equals to 4 plus 2. X is equals to 6 answer. So option 1 is correct. X is equals to 6. Clear? Next question. Next question is, find the value of under root 7 minus 4 root 3.
Okay, so under root 7 minus 4 रूट 3, ये हमें गिवन है. अब रूट और उसके अंदर वापस से एक और रूट, ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो क्या कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, यहां हम ध्यान देते हैं 7 पर. इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3. लेकिन 4 प्लस 3 ही क्यों लिखा इसको हमने, 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3. 4 प्लस 3 ही क्यों लिखा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें 7 को हम 1 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, या 5 प्लस 2, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. लेकिन उन सब में से हमने क्या चूज किया, 4 प्लस 3. क्यों, क्योंकि 4 हमें एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, 4 इज अ स्क्वायर नंबर, 2 का स्क्वायर होता है. तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वहां पर हमें इस नंबर को ऐसे ही ब्रेक करना है कि हमें एक तो स्क्वायर नंबर जरूर मिले उसमें. क्लियर, ठीक है. तो अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2. 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ रूट 3 माइनस 4 रूट 3. 4 को हमने क्या लिख लिया, स्क्वायर ऑफ 2. 3 को हमने लिख लिया स्क्वायर ऑफ रूट 3. ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं. तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस स्क्वायर ऑफ रूट 3, ऐसा लिख सकते हैं. सारी टर्म्स मिल गई, स्क्वायर ऑफ 2 मिल गया, स्क्वायर ऑफ रूट 3 आ गया लास्ट में, और माइनस 4 रूट 3 को हमने कैसे लिखा है, माइनस 2 इंटू रूट 3. आइडेंटिटी कौन सी फॉर्म हो रही है यहां पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है इसमें. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर. यहां होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा. क्या रिमेनिंग बच गया अब हमारे पास, 2 माइनस रूट 3. ऑप्शन में है 2 माइनस रूट 3. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 2 माइनस रूट 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a sum of LCM and HCF of two numbers is 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, then the product of two numbers is. तो यहां पर हमें एक कंसेप्ट तो पता ही है, ठीक है, हमने क्लास 10th में पढ़ा ही है इसको. और वो कंसेप्ट क्या है हमारे पास, that product of HCF and LCM of two numbers is always equal to the product of the integers. ठीक है, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक है, ये एक कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है. लेकिन ये कंसेप्ट हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमें या तो इंटीजर्स पता हो या LCM HCF पता हो. अभी हमें क्या मालूम है, इफ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1260, HCF प्लस
LCM is equals to 1260 and their LCM is 900 more than their HCF. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, HCF और LCM का सम ये हमें 1260 गिवन है. LCM HCF से कितना ग्रेटर है? 900 ग्रेटर है. तो हम क्या लिख सकते हैं? LCM इज इक्वल्स टू HCF प्लस 900. ठीक है, अब यहां हम क्या कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ LCM इन इक्वेशन 1. ठीक है, LCM की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख लें, तो ये हो जाएगा HCF प्लस HCF प्लस 900 is equals to 1260. Twice of HCF is equals to 1260 minus 900. ठीक है, अगर हम 1260 में से 900 माइनस कर लें तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे? Twice of HCF is equals to 360, 2 times 180, 360. HCF is equals to 180 HCF 180. Now substitute value of HCF in equation 2. HCF की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके LCM फाइंड कर लें. LCM is equals to HCF 180 plus 900. LCM is equals to 1080. ठीक है, HCF आ गया 180, LCM आ गया 1080. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है A और B का. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? HCF into LCM is equals to A into B. HCF 180, LCM 1080 is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A into B. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जीरोस तो हो ही गए. 108 into 18. A into B is equals to 194400 is the answer. Clear? So 19440 is the answer. Option 2. Next question. Next is question number 7. The value of 6 raised to the power n into 2 raised to the power 2n into 3 raised to the power 3n divided by 30 raised to the power n into 3 raised to the power 2n into 2 raised to the power 3n is equal to. Six raised to the power n into 2 raised to the power 2n into 3 raised to the power 3n divided by 30 raised to the power n into 3 raised to the power
2n इंटू 2⁻³ 3n। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को। 2 इंटू 3⁻n 2⁻2n इंटू 3⁻3n डिवाइडेड बाय 30। 30 को लिख सकते हैं 6 टाइम्स 5 30। ठीक है, 6 टाइम्स 5 30, सो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5⁻n इंटू 3⁻2n इंटू 2⁻3n। टू रेस टू द पावर n इंटू 3⁻n इंटू 2⁻2n इंटू 3⁻3n डिवाइडेड बाय 2⁻n इंटू 3⁻n इंटू 5⁻n, 3⁻2n और 2⁻3n, 2⁻n 3⁻n कैंसिल। ठीक है, अब बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या होंगी? -a⁻n डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m-n। क्या लिख सकते हैं हम? 3⁻3n - 2n डिवाइडेड बाय 2⁻3n - 2n इंटू 5⁻n। 3n - 2n is 3⁻n divided by 2⁻n into 5⁻n। 3⁻n divided by 5 into 2 is 10⁻n। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? 3/10 होल पावर n और 0.3⁻n। 0.3⁻n, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, what is the number x? First, the LCM of x and 18 is 36 and the HCF of x and 18 is 2. LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2. So product of LCM and HCF is equals to A into B. LCM 36, HCF 2. A is equals to x, B is equals to 18. X is equals to 36 into 2 divided by 18. 18 times 2, 36. X is equals to 4. Answer. So fourth option is the correct answer. Next is, next question.
ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, इफ p इज प्राइम देन रूट p इज इरेशनल। अगर p कोई एक प्राइम नंबर है तो रूट p कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, पहली कंडीशन। सेकंड है, एंड इफ a एंड b आर टू ऑड प्राइम नंबर्स, अगर a और b दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज कॉम्पोजिट। तो यहां पर हमें दो थ्योरम्स गिवन है। ठीक है, एक थ्योरम क्या गिवन है, इफ p इज प्राइम देन रूट p इज इरेशनल। सेकंड थ्योरम हमें गिवन है, इफ a and b are two odd prime numbers then a square minus b square is a composite number। अब ये दो क्वेश्चन हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, रूट 7 इज, ठीक है, ये क्या होगा, प्राइम नंबर, वाई, रूट 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कर लें तो वो नंबर हमेशा कैसा होगा, इररेशनल। So it will be an irrational number. So root 7 is a rational number, an irrational number, not a real number, terminating decimal. So option 2, an irrational number. Next question, question number 2, 119 square minus 111 square is, तो अब हम सेकेंड वाली थ्योरम देखेंगे, इफ a एंड b आर टू ऑड प्राइम नंबर्स, 119 111 आर ऑड प्राइम नंबर्स, then a square minus b square is, 111 is not a prime। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ऑड प्राइम नंबर्स तो हैं। ठीक है, कैसे हैं, ऑड प्राइम नंबर्स। सो 119 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट देखें तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 119 प्लस 111, 119 माइनस 111, 230 इंटू 8। ठीक है, 8 आई गया यहाँ पर, तो इसका मतलब है 2। ठीक है, और 5, ठीक है, 10 भी आ रहा है यहाँ पर, तो 2 5, ये दो नंबर्स तो हो ही गए इसमें। ठीक है, और 1 भी हो गया, तो 230 और ये नंबर भी होगा, तो कॉम्पोजिट नंबर तो होगा ही होगा ये। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसमें, दैट इट विल बी अ कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट, एंड ऑड प्राइम नंबर, एंड ऑड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ऑड कॉम्पोजिट नंबर तो हो नहीं सकता, लास्ट में 0 आ रहा है, तो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन कैसा होगा, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहां पर 2 ऑड नंबर्स, यहां ये चीज जरूरी नहीं है, ए एंड बी आर 2 ऑड नंबर्स। ठीक है, ये ऑड नंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब कोड्स क्या दे रखे हैं हमें, बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और बी दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं और आर किसका एक्सप्लेनेशन है, ए का। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 is a rational number,
ठीक है, 2 तो हमें रैशनल नंबर गिवन है, रीजन क्या गिवन है हमें, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इररेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट हमेशा इररेशनल होते हैं। तो हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर, स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, स्क्वायर ऑफ रूट 4 इज 2 विच इज रैशनल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ठीक है, उन सबका स्क्वायर रूट एक इररेशनल नंबर मिले, वो हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है, जैसा कि इस केस में आ रहा है रूट 4 के केस में, ठीक है। तो यहां पर रूट 2 इज रैशनल, ये तो सही है, असर्शन सही है, ए इज ट्रू, ठीक है। अब रीजन गलत है यहां पर, ठीक है, सो रीजन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो ऑप्शन 3, A is true but R is false. Next question. ठीक है, ये भी assertion reason based question है, तो codes तो हमारे सेम ही है, both A and B are individually true and R is the correct explanation of A. Both A and R are individually true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Okay. So first is the HCF of two numbers is 16. Assertion. Assertion is HCF of two numbers is 16. Let us suppose A and B. ठीक है, ये दो हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो HCF of A and B तो हमें 16 गिवन है and their product is 302. A into B is equals to 3072. Then their LCM is 162. तो ये चीज हम चेक करके देख सकते हैं कि वाकई उनका LCM 162 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर HCF और LCM मल्टीप्लाई कर सकते हैं और A इंटू बी फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, कंडीशन क्या है हमारे पास, A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। A इंटू बी हमें गिवन है 3072, HCF 16, LCM 162, इनको मल्टीप्लाई कर लें, अगर LHS RHS करेक्ट हैं, ठीक है, तब तो ये चीज सही होगी। सो 162 इंटू 16, टू 2592। तो क्या हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो इसका मतलब है हमारा असर्शन फॉल्स है। असर्शन कैसा है हमारा, फॉल्स। अब हम रीजन चेक करके देखते हैं, इफ A and B are two positive integers then HCF into LCM is equals to A into B, हमारा रीजन करेक्ट है, ठीक है, ये कंडीशन हमें मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो हमारा रीजन क्या है, ये ट्रू है, तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन, A इज ट्रू बट R इज सॉरी A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे नंबर सिस्टम पे बेस्ड। ठीक है, नंबर सिस्टम में NTSC में जो क्वेश्चंस आते हैं 9th और 10th के मिलाकर के, ठीक है, वो हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है एज नंबर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
तो हमें इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एनटीएससी में हमसे पूछे जाएंगे। क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।